Students, good afternoon. Once again, we are meeting here for the subject of PC. We were talking about in the previous lectures regarding our FM modulators. We discussed their direct methods based on varactor diode as well as FET. Both are nonlinear and semiconductor devices. Their reactance is varying with the application of the modulating signal, and because of the variation in the reactance, the frequency of the 10th oscillator circuit is varying. So in the result, it is producing FM. So we discussed 2-3 methods there and discussed mathematical expressions as well. And of course, uh, we have also discussed the limitations and disadvantages of the LC oscillator through which we can generate direct FM. Okay, and big limitation of the LC oscillators are there. Whatever the frequency is generated, that is not stable much. So that is a stability is less. So if we want to communicate with if we want to communicate good information or broadcast the information, maybe valuable information, so that may be distorted because of the instability of the in LC oscillators. So what is the alternative? We have to go for some other alternative which can produce a stable frequency. So for generating the stable frequency, we instead of LC oscillator, we are using crystal oscillator, which can generate a stable frequency. Right now, clear? So look at reactance modulators do not have a very good frequency stability, but if it is to be used in the broadcast application, then it must have a high frequency stability, obviously. So a high frequency stability can be obtained by using the frequency stabilized reactance modulator. Now we will discuss what is frequency stabilized reactance modulator. Okay, look at this is the block diagram of the frequency stabilized reactance modulator, right? So here, frequency stabilized reactance modulator. Look at this is a modulating signal which is in the range of audio frequency, which is generating information. Of course, application of this, we are applying this to the reactance modulator. The reactance of this modulator is being varied. It can be FET, it can be varactor diode, it can be transistor. So when the variation of the reactance of this modulator, it is output of this is given to the LC mass oscillator, where the frequency is being varied and it is producing FM passing through buffer and limiter. Okay, but in case of LC oscillator, it was not a much stability in that case. So to increase the stability in the output of the reactance so that we can have a stable FM, okay, what we are doing, we are adding this extra circuitry, look at. So we are getting fractional part of the output of the FM and giving to the mixer, right? Mixer, and obviously we know that mixer is having two inputs, and other input we are getting from crystal oscillator. So this crystal oscillator is generating this F naught, and a mixer will produce both components, sum component and difference component, and we have taken here difference component, this Fs minus F naught. This is the difference component, and this is nothing but it will be an intermediate frequency which is to be amplified. Let me tell you here that this frequency will be the 1/20th part of this particular frequency, 1/20 गुना घट ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। सो वैसे ही बहुत घट फ्रीक्वेंसी हो गई है ना, बहुत घट हो गई। सो जी असी मिक्सर की आउटपुट होएगी Fs माइनस F नॉट, दिस विल बी 1/20, यानी 1/20th पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। सो एक घट गई घटी हुई फ्रीक्वेंसी में असी एंपलीफाई कर रहा। सो इनफैक्ट दिस इज एन इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, असी इहनूं एंपलीफाई करके एंपलीफाइड जी आउटपुट है वो असी फेस डिस्क्रिमिनेटर में देनी। फेस डिस्क्रिमिनेटर ने की करना, ये एक ऐसा सर्किट है जिसने डीसी प्रोड्यूस करना, डीसी। और डीसी जी
वो एक किस्म की करैक्टिंग वोल्टेज है ताकि जी रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर के विच वेरीएशन आ रही है इनू करैक्ट कर सके गल पल्ले पई। So the output of the phase discriminator is given to the reactance modulator in the form of DC correcting voltage. So output of phase discriminator is nothing, it will be a DC correcting voltage, and this DC is showing this when this will be given to the reactance modulator along with this modulating signal, so it will produce a stable output, and finally we can have a stable output. And then this stability, whatever irregularities were there, that has been removed over here. I mean stability is more now with the addition of this particular 4 blocks, you know. So then final output will be amplified with the help of class C power amplifier for the onward transmission to through the antenna. Okay, this is what we Yes, can sir. have a frequency stabilized reactance modulator. Okay, so बाकी सारी थ्योरी है मैं डिस्कस कर ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਫਿਕਸ ਮਿਕਸਿੰਗ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਫਐਮ ਵੇਵ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਫਐਮ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਐਫਐਮ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਫਐਮ ਵੇਵ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਫਐਮ ਵੇਵ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਮਿਕਸਿੰਗ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਐਫਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਿਕਸਿੰਗ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੀਟਰੋਡਾਈਨਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਕਸਿੰਗ ਮੀਨਸ ਹੀਟਰੋਡਾਈਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਰ ਦੀ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਇਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 2-3 ਟਰਮਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੀਟਰੋਡਾਈਨਿੰਗ मीन्स मिक्सिंग ऑफ द सिग्नल और दूसरी फ्रीकुएंसी मल्टीप्लिकेशन। फिर आप इन्होंने दोनों का इफैक्ट देखते हैं एफ एम से की पैदा, ठीक है। हम देखो इफैक्ट पहला मिक्सिंग की गल करांगे तो पहला तो आ देखो आ माड़ी जी डायग्राम देखो ऊपर लिखा से ना इफैक्ट ऑफ मिक्सिंग, आ डायग्राम देखो आ मिक्सर है। सो मिक्सर है इनू आप एक मिक्सर दी हमेशा 2 इनपुट होंगे। पहला मैं तुहानूं पहला भी कहा एक तो आप जी एफ एम देती, एफ एम मीनस सेंटर फ्रीकुएंसी फ्रीकुएंसी डेविएशन ऐड हो रही है ਜਾਂ सबट्रैक्ट हो रही है, यानी कैरियर फ्रीकुएंसी जी ਜਾਂ तो बढ़ रही ਜਾਂ घट रही, यानी चेंज आ रही। सो एफ एम है एक इनपुट जी मिक्सर ਨੂੰ एफ एम देती, दूजी असी लोकल ऑसिलेटर नाल एफ नॉट जनरेट की और मिक्सर ने जी आउटपुट प्रोड्यूस करनी है वो तुहानूं पता ही है 2 कंपोनेंट प्रोड्यूस करता, एक सम का तो एक डिफरेंस का। जिदा सेंटर फ्रीकुएंसी एफ नॉट ऐड हो गई या सेंटर फ्रीकुएंसी तो एफ नॉट घट गई, पता लग गया यह डिफरेंस कंपोनेंट है, आ सम कंपोनेंट है, ठीक है। असी सम कंपोनेंट सिलेक्ट कर लिया मान लो तो वो डेविएशन भी आई क्योंकि डेविएशन के नाल तुरी जानी। हुण आपां नोट करते हैं कि डेविएशन का कोई फर्क नहीं पिया, वो डेल्टा एफ ही रही है, पर सेंटर फ्रीकुएंसी फर्क पै गया। देखो एफ सी जी इतने कली सी वो एफ नॉट बन गई, ये काहदे नाल होया, ये इफैक्ट मिक्सिंग नाल होया। सो मिक्सिंग दे विच ये करिए भी असी सेंटर फ्रीकुएंसी विच तां चेंज आई पर डेविएशन विच भी नहीं कोई चेंज आई, और डेविएशन करके मॉड्यूलेशन इंडेक्स विच भी नहीं कोई चेंज आई। जां असीं ये करिए भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स विच जे कोई चेंज नहीं आई उहदे करके फ्रीकुएंसी डेविएट भी नहीं होनी, पता लग गया। सो ये तो है मिक्सिंग वाला, यही कहानी लिखी है सारी, ठीक है। और थल्ले आपां गल करांगे मल्टीप्लिकेशन की। हुण मल्टीप्लिकेशन दे विच देखो एफ एम फिर आ गई, एफ एम वही है सेंटर फ्रीकुएंसी प्लस माइनस डेल्टा एफ, यदा मतलब जी कैरियर फ्रीकुएंसी आ वो अपने ओरिजिनल अमाउंट तो किन्नी चेंज हुई, चेंज मीनस किन्नी वधी तो किन्नी घटी, तो उन्होंने कहते फ्रीकुएंसी डेविएशन। एफ एम मिल गई, असी ये फ्रीकुएंसी मल्टीप्लायर में दिने एज इनपुट, ये एन टाइम्स हो जाना, यानी जी एफ एम है चाहे आ देखो चाहे ये सेंटर फ्रीकुएंसी वो भी एन टाइम्स हो गई, ये फ्रीकुएंसी डेविएशन वो भी एन टाइम्स हो गई, और जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो भी एन टाइम्स हो गया। और नोट की गल दोनों स्टेजा फर्क की आ, पहली स्टेज के सिर्फ फ्रीकुएंसी डेविएशन तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स कॉन्स्टेंट रहे पर सेंटर फ्रीकुएंसी चेंज आई मिक्सिंग करके। तो जे मल्टीप्लिकेशन करिए तिना चीज़ों जी चेंज आती है, सेंटर फ्रीकुएंसी भी, फ्रीकुएंसी डेविएशन भी, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी। क्लीयर? हाँ स्टूडेंट्स क्लीयर? हाँ Yes, sir. हाँ क्लियर रिस्पॉन्ड करो, ठीक है ना। हाँ
सो चलो अजे भी 9 बच्चे जुड़े, देख लो 9-10 बच्चे होर नहीं जुड़े, 20 बच्चे है स्टूडेंट, ठीक है नहीं, कोई नहीं, चलो हुण मैं की कर सकदा। सो इसे ही बेस ते आपां एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। देखो आपां कहंदा फाइंड दी, आ एक क्वेश्चन है, हाँ आ एक डायग्राम है, इस डायग्राम दे विच थोड़ा जिहा मैनूं उपर होर करना, यस in this particular block diagram find out the carrier frequency, fc ਕੱਢਣੀ ਆ, frequency deviation delta f ਕੱਢਣਾ, and modulation index at point a and b। a ਤੇ mf ਕਿੰਨਾ, ਜਾਨੀ fm ਹੈ ਨਾ, ਇਹ m ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ f ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ modulation index for fm। a ਤੇ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਤੇ b ਤੇ ਵੀ ਕੱਢਣਾ, ਜਾਨੀ ਬਿਫੋਰ ਮਿਕਸਿੰਗ ਵੀ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਫਿਰ m ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ठीक है, और मिक्सिंग तो बाद मॉड्यूलेशन इंडेक्स में कोई चेंज नहीं आती, ये भी तुहानूं मैं दस्सिया सी। दोनों पॉइंटां दे असीं पहलां मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी करना ते फ्रीक्वेंसी डेविएशन भी करनी ते कैरियर फ्रीक्वेंसी भी करनी। फिर उन्हें अगला पार्ट क्या, अज्यूम दैट द आउटपुट ऑफ द मिक्सर कॉमा दी एडिटिव फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਸਰ ਨੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਮ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡੀਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ठीक है, की कैरियर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डेविएशन, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, दोनों पॉइंटां दे ए ते बी ते। गिवन की है साडे कोल इस ब्लॉक डायग्राम विच, गिवन देख लो की है, गिवन जो आ सानू एफएम दे विच कहंदा कैरियर फ्रीक्वेंसी जिहड़ी है सेंटर फ्रीक्वेंसी यानी 10 मेगाहर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन 10 किलोहर्ट्ज है। देखो 10 मेगाहर्ट्ज, डेविएशन बहुत घट आ, कित्थे मेगा ते कित्थे किलो, ठीक है। डेविएशन का मतलब है फ्रीक्वेंसी अपने ओरिजिनल अमाउंट तो कितनी की चेंज होई, वधी जां घटी, वो मैं तुहानूं इस न्यूमेरिकल दसदा। ते जिहड़ा मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उन्हें 5 लिया। हुण जदों असीं मल्टीप्लायर के थ्रू 3 टाइम्स एन नंबर ऑफ एन इत्थे 3 हो गया, एन 3 हो गया, तो डेफिनेटली तिन्ना चीज़ों से फर्क पै जाना, फ्रीक्वेंसी भी 3 टाइम हो जानी, डेल्टा एफ भी 3 टाइम्स हो जाना, और एम एफ भी 3 टाइम्स हो जाना। आप पहला ए पॉइंट से देखने, देखो कैरियर फ्रीक्वेंसी भी देखो ए पॉइंट पे वो 3 टाइम्स हो गई, फ्रीक्वेंसी डेविएशन भी 3 टाइम्स हो गई, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी 3 टाइम्स हो गई, ठीक है। फिर जी मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, क्योंकि जी डेविएशन है वो घटन के वधन नाल है, जे घटी आ तो 30 मेगाहर्ट्ज के 30 किलोहर्ट्ज घटा दो, हुण इत्थे 30 किलो आ, ये मैगा आ, ध्यान रखना, यानी ये 0.03 बनया मैगा, 0.03 मैगा बनया, 30 चो घटाना इन्नी आ गई, इस तरीके 0.03 मैगा ऐड कर देना, वो इन्नी आ गई। सो आ फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, मिनिमम तो मैक्सिमम, ये मिनिमम तो मैक्सिमम जी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डेविएशन मतलब दसदी आ भी इन्नी वधी जा इन्नी घटी, यदा पॉइंट ए ते आ गया। हुण पॉइंट बी की गल करते हैं, पॉइंट बी ते की आ कि पॉइंट बी ते सीगा मिक्सर की आउटपुट, मिक्सर की आउटपुट दे विच आपां देखिया सी सेंटर फ्रीक्वेंसी च सिर्फ चेंज आउंदी आ, क्योंकि पहला वो 10 सी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो गई, 30 बन गया ना, तो हम 40 बन गई, सो ये चेंज आ गई। पर तुम देखो जी मैक्सीमम फ्रीक्वेंसी आ वो तो ओबवियसली इतने किन्नी सी 30.03, ये 10 ऐड करता, तो मिनीमम कि 29.970 मैगाहर्ट्ज, ये 10 घटा, ये 10 ऐड करता, ये भी उत्थे क्योंकि उत्थे अड़ी मिक्स असी एडिटिव कंपोनेंट लिया, उन्हें एडिटिव कंपोनेंट की गल की। सो मिनीमम तो मैक्सीमम फ्रीक्वेंसी के 10 मैगाहर्ट्ज ऐड ही होना, पता लग गया, उन्हें इसे करके भी एडिटिव कंपोनेंट लो फ्रीक्वेंसी वाला। तो जी फ्रीक्वेंसी डेविएशन है वो भी चेंज आनी आ, फ्रीक्वेंसी डेविएशन की मैक्सीमम के सेंटर घटा दो, सेंटर कितनी है 40, क्योंकि वो जिन्नी बनी है ना, क्योंकि ये 40 बन गई, तो ये सो इन्नी डेविएशन आ गई, जां सेंटर फ्रीक्वेंसी के मिनीमम घटा दो, वो भी इन्नी आ गई। सो असी देखने जी फ्रीक्वेंसी डेविएशन मिक्सर के केस के कोई चेंज नहीं, ये आप पहला भी किया, ये फ्रीक्वेंसी डेविएशन भी नहीं कोई चेंज, एम जिन्ना है वो भी रहना, सिर्फ सेंटर फ्रीक्वेंसी चेंज है। सो सेंटर पहला कितनी सी 30 मैगाहर्ट्ज सी 3 टाइम, वो 10 ऐड हो गया 40 बन गई, पता लग गया। सो ये एक न्यूमेरिकल सीगा वो बेस पे जी आप पिछे स्टेबल फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइज रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर पढ़ा, और इफेक्ट ऑफ मिक्सिंग एंड इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफएम की गल की। हुण ये तो सीगे डायरैक्ट मैथड, हुण इनडायरैक्ट मैथड के नाल आपां एफएम किदां जनरेट करनी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन किदां जनरेट करदी। हाँ वे स्टूडेंट सुन रहे हैं, हेलो यस सर, अज 9 ही स्टूडेंट जुड़े, देखो बाकी बच्चे नहीं जुड़े। चलो इनडायरैक्ट मैथड दे विच
ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਫਐਮ ਜਨਰੇਟਰ ਵਾਸਤੇ ਐਲਸੀ ਆਸੀਲੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਆਸੀਲੇਟਰ ਸਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਐਲਸੀ ਆਸੀਲੇਟਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਤੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਥਡ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫਐਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਉਸ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ। ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਮੈਥਡ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो पहला ब्लॉक डायग्राम देखो, आगे नजर। यस सर। हाँ ये ब्लॉक डायग्राम, चलो अब ब्लॉक डायग्राम इस ब्लॉक डायग्राम जी इनडायरैक्ट मैथड आर्मस्ट्रॉन्ग मैथड की एफएम जनरेशन वास्ते ये दो तीन स्टेजा जी डॉटेड आ ਇਹਦਾ नाम है फेस मॉड्यूलेटर, यानी जो पूरे का पूरा ब्लॉक डॉटेड आ ये फेस मॉड्यूलेटर है। फेस जे चेंज होएगा तो फ्रीकुएंसी में चेंज आनी है। गल पहले पै गई इस ब्लॉक की जी भी आउटपुट है वो फेस जो चेंज होना, कंबाइनिंग नैटवर्क की जी आउटपुट है वो जो फेस चेंज होएगा कैरियर का, जो कैरियर का फेस चेंज होया तो एफएम प्रोड्यूस होना। हुण क्योंकि बहुत सारिया स्टेजा ही गुजर जाती है, वो फ्रीकुएंसी घट जाती है, वो फ्रीकुएंसी डेविएशन घट जाती है। ठीक है, और वह आप पढ़िया नहीं मॉड्यूलेशन इंडेक्स घट जाता, फिर ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर के स्टेजा के असीं पास कराने। ठीक है, मिक्सर के मिक्सर की जी उस तो बाद भी वो आउटपुट ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर्स ही पास कराने ताकि जी फ्रीकुएंसी या फ्रीकुएंसी डेविएशन या मॉड्यूलेशन इंडेक्स वधे। फिर फाइनली असी क्लास सी पावर एंपलीफायर की इनू एंपलीफाई करके इसनू, ठीक है, असी आउटपुट जी वो ट्रांसमिट एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, ये इनडायरैक्ट वे है, यानी असी फेस मॉड्यूलेटर की आउटपुट जी फेस मॉड्यूलेशन है वो करके एफएम जनरेट होनी। इतने फेस का मतलब की एंगल के चेंज आना, फेस एंगल के चेंज होना। फेस एंगल किहदा, कैरीयर का, वो आप देखते हैं। हम पहले इन्ने ब्लॉक में देख लो, ये क्रिस्टल ऑसीलेटर दिता जिन्हें कैरीयर प्रोड्यूस करनी आ, थ्रू बफर के आप कंबाइनिंग नैटवर्क में इतने डायरैक्ट भी दिने, पर थले बैलेंस मॉड्यूलेटर दिता जी ये कैरीयर 90 डिग्री शिफ्ट ना दी, तो बैलेंस मॉड्यूलेटर की दूसरी जी इनपुट आ वो हैगी आ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। असी इनू ऑडियो इक्वलाइजर के थ्रू दिने। ऑडियो इक्वलाइजर का रोल है सिर्फ उन्हें जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उन्होंने इक्वलाइज करना, मतलब उन्होंने स्टेबल जहा रखना, वो फ्रीकुएंसी कंपोनेंट जो सारे सही रखने हैं। ठीक है, और बैलेंस मॉड्यूलेटर की जी आउटपुट है सानू पता है वो होंगी है डबल साइड बैंड सप्रैस्ड कैरीयर। इन्हें सिर्फ 2 साइड बैंड ही कटने, पता लग गया जी आप पिछे पढ़ी सी AM के। हुण तुसीं देखो इनू 90 डिग्री शिफ्टड कैरीयर गई और इधर डायरैक्ट कैरीयर गई। सो डायरैक्ट कैरीयर तो इतने डबल साइड बैंड सप्रैस्ड कैरीयर विद शिफ्टड कैरीयर, वो असी कंबाइनिंग नैटवर्क में एज इनपुट्स दित्तियां कैरीयर ते प्लस आ। इत्थे जिहड़ा फेस है वो चेंज होएगा, मैं दसना गां किदां वो किदां चेंज होएगा। इन्हें एफएम प्रोड्यूस कर लेनी जी अगली सिर्फ इन्नी जी ब्लॉक है डॉटेड पहला फस्ट, यदा ज़्यादा अहम रोल है। बाकी का सिर्फ अगे मल्टीप्लीकेशन तो मिक्सिंग है, उन्होंने रोल तो यह भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स मॉडल फ्रीकुएंसी डेविएशन या सेंटर फ्रीकुएंसी बढ़ाना, तो जां बस उन्होंने बढ़ाना तो एंपलीफाई करके उन्होंने एफएम में ट्रांसमिट एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट करना। उन्हें कहा भी 4 भागों पार्ट बन सकते कितना एफएम जनरेट फेस मॉड्यूलेटर तो एफएम कितना बनती है, फेस मॉड्यूलेटर तो असी इनू इंप्लीमेंट कितना करना, फिर 1 ते 2 पार्ट में असी कंबाइन करके एफएम कितना बनाने, और फिर सानू फ्रीकुएंसी मल्टीप्लायर से एंपलीफायर की जरूरत क्यों पैंदी, क्यों यूज़ करते हैं। पहला केस है भी असी एफएम जनरेट कर कितना सकते PM को। आप ये देखा कि भी कहता इन PM अलॉन्ग विद फेस वेरीएशन, इन PM the फेस मॉड्यूलेशन में फेस वेरीएशन कॉमा सम फ्रीकुएंसी वेरीएशन, फेस वेरीएशन करके कुछ फ्रीकुएंसी वेरीएशन भी होंगी आ, ये तो पता ही है। जे फाई या थीटा चेंज करूँगा तो फ्रीकुएंसी भी चेंज होना, जिदा आप पहला पढ़िया सीगा FM के केस के। सो हायर मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस ग्रेटर फेस शिफ्ट। आप भी पॉइंट नोट करना, जिन्नी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वोल्टेज ज़्यादा होएगी उन्ना फेस शिफ्ट ज़्यादा होएगा, और वो करके विच इन टर्न प्रोड्यूसर ग्रेटर फ्रीकुएंसी डेविएशन। सो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीकुएंसी जब वोल्टेज ज़्यादा होने करके ग्रेटर फेस शिफ्ट होएगा, जिहदे करके
फ्रीकुएंसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ। तो मॉडरेटिंग फ्रीकुएंसी जी कितों तो कितने वेरी करती लो तो हाई जिस इनफॉर्मेशन है एट हायर मॉडरेटिंग फ्रीकुएंसीज प्रोड्यूस ए फास्टर रेट ऑफ चेंज ऑफ मॉडरेटिंग वोल्टेज क्योंकि जिन्नी मॉडरेटिंग फ्रीकुएंसी ज़्यादा होगी मॉडरेटिंग जो वोल्टेज है वो चेंज भी फास्ट आएगी वो दर दर मॉडरेटिंग सिग्नल वोल्टेज की चेंज के भी मतलब ज़्यादा फास्ट रेट में चेंज आएगी तो वो करके भी सानू ग्रेटर फ्रीकुएंसी डेविएशन मिलेगी पता लग गया। तो ग्रेट जी हायर मॉडरेटिंग फ्रीकुएंसीज करके रेट फास्ट हो जाएगा मॉडरेटिंग वोल्टेज के चेंज होने का वो करके सानू फ्रीकुएंसी डेविएशन भी ज़्यादा मिलेगी। सो इस करके पीएम में की मिलता कहता 10 एन PM दी कैरियर फ्रीकुएंसी डेविएशन जी फ्रीकुएंसी की डेविएशन है कि डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है मॉडरेटिंग वोल्टेज के नाल मॉडरेटिंग फ्रीकुएंसी के भी दोनों चीज़ों के जोड़ा मॉडरेटिंग सिग्नल है वो जी इनफॉर्मेशन जिहदे इनफॉर्मेशन है वह एंपलीट्यूड भी होएगा तो फ्रीकुएंसी भी होएगी। सो एंपलीट्यूड होंदा मॉडरेटिंग वोल्टेज ते नाल मॉडरेटिंग फ्रीकुएंसी। सो जिन्नी वोल्टेज वो ज़्यादा हुई या जिन्नी मॉडरेटिंग फ्रीकुएंसी ज़्यादा हुई उन्नी कैरियर की फ्रीकुएंसी डेविएशन ज़्यादा होनी है। पर किहदा केस आ PM दे विच फेस मॉडुलेशन पर FM दे विच की आ FM दे विच जिहड़ी फ्रीकुएंसी डेविएशन होनी है वो सिर्फ तो सिर्फ मॉडुलेटिंग वोल्टेज के प्रपोर्शनल है। फ्रीकुएंसी उत्थे जिन्नी मर्जी होवे उहदा कोई चक्कर नहीं पर उपरले केस की आ फ्रीकुएंसी का भी चक्कर है तो मॉडुलेटिंग वोल्टेज का भी चक्कर है यानी एंपलीट्यूड का भी चक्कर पता लग गया। FM के विच कल्ले ही मॉडुलेटिंग वोल्टेज जी वो जी फ्रीकुएंसी डेविएशन वो डायरैक्टली प्रपोर्शनल है। क्लीयर क्लीयर ना। इस प्रॉब्लम नूं करैक्ट करना इस प्रॉब्लम नूं करैक्ट करने वास्ते असीं की करते हैं कहता तू करैक्ट दिस प्रॉब्लम मॉडुलेटिंग सिग्नल इज पास थ्रू ए लो पास फिल्टर फिर असीं की करते हैं इस प्रॉब्लम को करैक्ट करने वास्ते जो मॉडुलेटिंग सिग्नल है आ हायर फ्रीकुएंसीज हो गई ना आह असीं उन्होंने लो पास फिल्टर में ही पास कर दें। लो पास फिल्टर RC फिल्टर्स करते हैं इन्होंने इंटैगरेटर भी कहते हैं जो असीं पास करना इन्हें लो फ्रीकुएंसी सिर्फ पास करनी हाई में अटैनुएट कर देना या स्टॉप कर देना। सो कहता ड्यू टू दिस हाई फ्रीकुएंसी मॉडुलेटिंग सिग्नल्स आर अटैनुएटेड बट देयर इज नो चेंज इन द एंपलीट्यूड ऑफ द लो फ्रीकुएंसी मॉडुलेटिंग सिग्नल जेड़ा लो फ्रीकुएंसी मॉडुलेटिंग सिग्नल पास करना वो एंपलीट्यूड कोई चेंज नहीं पर हाई मॉडुलेटिंग फ्रीकुएंसी उन्हें स्टॉप कर लेना या अटैनुएट कर लेना किदा। हाँ देखो अगे मैं हाँ देखो सो मॉडुलेटिंग सिग्नल है लो फ्रीकुएंसी भी हाई भी है ठीक है। RC फिल्टर सर्कल लगा ये लो पास फिल्टर सर्कल का रोल करता है इन्होंने इंटैगरेटर कहते हैं ठीक है। इन्हें लो फ्रीकुएंसी जी हाई फ्रीकुएंसी के कैपेसिटर शॉर्ट हो जाना बाईपास हो जानी सिर्फ लो अलाउ करनी क्योंकि लो वास्ते कैपेसिटर ब्लॉक हो जाता यानी ये लो फ्रीकुएंसी को मान लो ब्लॉक करता यानी ज़्यादा रिएक्टेंस ऑफर करता। सो लो फ्रीकुएंसी जी जाएगी ये जी कैरियर है इस कैरियर का फेस चेंज होएगा। हुण साडी प्रॉब्लम दूर हो गई हाई फ्रीकुएंसी वाली दूर हो गई सिर्फ लो फ्रीकुएंसी या वो एंपलीट्यूड के नाल इस कैरियर का फेस चेंज होएगा जिहदे करके सानू FM मिलेगी। पता लग गया समझ आ गई। हेलो हाँ स्टूडेंट हाँ जी सर जी हाँ। सो hence the extra deviation in the carrier frequency due to higher modulating frequency वो देख लिया हायर मॉडुलेटिंग जी फ्रीकुएंसी है वो करके जी कैरियर डेविएशन आती है वो कंपनसेट हो जाएगी यानी किस्म का हरजाना भर लेगी तो क्योंकि आप स्टॉप करता उन्होंने अटैनुएट करता बाय रिड्यूसिंग दी एंपली क्योंकि जो हाई फ्रीकुएंसी चल गया एंपलीट्यूड भी चला गया पता लग गया जो सिग्नल ही गया वह एंपलीट्यूड भी नाले गया जहाँ बहुत घट जाऊगा। हैंस दी फ्रीकुएंसी डेविएशन एट द आउटपुट ऑफ द फेस मॉडुलेटर विल बी इफेक्टिव भी प्रपोज। सो जी डेविएशन आएगी फेस मॉडुलेटर की फ्रीकुएंसी जी आउटपुट आएगी उस जी डेविएशन आएगी सिर्फ लो फ्रीकुएंसी दे करके आएगी जो लो फ्रीकुएंसी इन्हें सिग्नल पास करना या वो मॉडुलेटिंग वोल्टेज करके आएगी। पता लग गया समझ आ गई जी। हाँ देखा कहता ड्यू टू दिस अरेंजमेंट फ्रीकुएंसी डेविएशन एट द आउटपुट ऑफ द फेस मॉडुलेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू हायर मॉडुलेटिंग फ्रीकुएंसी वो रिड्यूस कर देता। हायर मॉडुलेटिंग जिहड़ियां फ्रीकुएंसीज है ਉਹਦਾ इफेक्ट ही आप नलीफाई कर दिता क्योंकि असं लो पास फिल्टर लगाता उन्हें सिर्फ लो फ्रीकुएंसी में पास करना हाई में स्टॉप कर लेना। सो लो फ्रीकुएंसी की फ्रीकुएंसी या जो एंपलीट्यूड है वो करके कैरियर की फेस से भी चेंज होनी है फेस मॉडुलेटर ने FM कढ़ देनी पता लग गया। सो रिजल्ट की है FM ठीक है फेस मॉडुलेटर की जी आउटपुट है वो FM ये उन्हें दिखाया सी उस ब्लॉक के आप
फेस मॉड्यूलेटर तो FM कितना जनरेट कर सकते इन्हें उन्होंने मैथमेटिकली भी एक्सप्रैस किया कितना ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਫੇਸ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ A sin ਆ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੂਰਾ ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਓਮੇਗਾ CT plus NP sin omega t ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਟਰਮ ਉਹਨੂੰ ਥੀਟਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਥੀਟਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਐਂਗੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ PM ਵੇਵ ਦੀ ਜਾਨੀ ਫੇਸ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਵੇਵ ਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਓਮੇਗਾ I ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਣੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਐਂਗੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ PM ਦੀ ਉਹ d ਥੀਟਾ ਬਟੇ dt ਆ ਯਾਨੀ dt ਬਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪਈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਉਹ ਕੱਲੀ ਓਮੇਗਾ ਸੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ MP ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ sin ਓਮੇਗਾ MT ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦਾ cos ਓਮੇਗਾ m ਬਣ ਜਾਏਗਾ MT ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਓਮੇਗਾ MT ਆ ਉਹਦਾ ਫੇਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟਾਈਮ ਕੱਲਾ ਹੀ ਓਮੇਗਾ m ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਓਮੇਗਾ ਇਹ 2f ਬਣ ਗਿਆ 2πfi ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ 2πf ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਓਮੇਗਾ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ 2πfc ਬਣ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ 2π ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ 2πfm ਬਣ ਗਿਆ ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2π ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ cos ਓਮੇਗਾ mt ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ 2πfm ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਓਮੇਗਾ m into t ਇਹ cos ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗੇ ਓਮੇਗਾ m into t ਇਹ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕੱਲੀ fm ਜਿਹੜੀ ਆ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਸੋ ਐਂਗਲ ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਜੇ ਨਿਕਲੇਗਾ fm ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ fc ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ fi ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2π ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਿਕਲੇਗਾ तो वो कैंसल हो जाएगा समझ आ गई इतने जी FM ते M के पैरों च P आ ये फ्रीक्वेंसी डेविएशन है ये डेल्टा मैक्सिमम इनू इदा पता लग गया हुण तुसीं देखो ये फ्रीक्वेंसी डेविएशन जी मॉड्यूलेशन इंडैक्स के प्रपोर्शनल है और जो मॉड्यूलेशन इंडैक्स है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वोल्टेज के प्रपोर्शनल है आ देख लो सो आ देखा ना MP जो प्रपोर्शनल मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज है FI भी फिर जे मॉड्यूलेटिंग FI इन दी इक्वेशन 543 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੇਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਵਿਦ ਦੀ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਸੋ ਦਿਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਅਬਟੇਨਡ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ PM ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 8 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਬਲੌਕ ਹੈ ਆ ਬਲੌਕ ਫੇਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲੋਸਿਟੀ ਨੇ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਧੀ ਗਈ ਕੈਰੀਅਰ 90 डिग्री शिफ्ट इतने देती इतने सानू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर कर रहा पर इतने कैरियर का फेज शिफ्ट कितना है 90 डिग्री सो 90 डिग्री शिफ्ट कैरियर विद 2 साइड बैंड ते नाल ओरिजिनल कैरियर कंबाइनिंग नेटवर्क दे के इन्हें PM कढ़ दी पहला आप ये देखिए PM बनी कितना दी इनू फेजर डायग्राम ना देख रहे हैं आ देखो फेजर डायग्राम देखो ऊपर नोट करो आ पॉइंट नोट करो ए ते कैरियर है C ਤੇ ਵੀ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ B ਤੇ ਵੀ ਕੈਰੀਅਰ ਪਰ D ਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਸ਼ਿਫਟਡ ਕੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ABC ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ D ਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਸ਼ਿਫਟਡ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ABC ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਅਨਮੋਡੂਲੇਟਡ ਹੈ D ਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਈ ਆ ਦੇਖੋ ਕੈਰੀਅਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ D ਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ E ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਹੈਲੋ E ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅਪਰ ਸਾਈਡਮੈਂਟ ਤੇ ਲੋ ਸਾਈਡਮੈਂਟ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਉਹ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਅਪਰ ਸਾਈਡ ਦਾ ਤੇ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਟਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਡਬਲ ਸਾਈਡਮੈਂਟ ਬੈਲੈਂਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅਨਮੋਡੂਲੇਟਡ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਗਈ ਆ ਦੇਖ ਇੱਕ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਅਨਮੋਡੂਲੇਟਡ ਕੈਰੀਅਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਠੀਕ है चलेगा ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਈਡਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇਹ ਤੇ ਨਾਲ ਅਨਮੋਡੂਲੇਟਡ ਕੈਰੀਅਰ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਸਮਝ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਨਮੋਡੂਲੇਟਡ ਕੈਰੀਅਰ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਤੇ ਅਨਮੋਡੂਲੇਟਡ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ एंगल है ना और ये फेस एंगल है और ये एंगल का घटना ते बदना किते डिपेंड करता
ਅਪਰ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਦੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਦੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਤੇ ਅਪਰ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਣਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵੀ ਘੱਟ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਇਹ ਅਨਮੋਡੂਲੇਟਡ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਐਂਗਲ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਵਧਿਆ ਤੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਦਾ ਅਪਰ ਦਾ ਤੇ ਲੋਅਰ ਦਾ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਫਿਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਨਮੋਡੂਲੇਟਡ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਐਂਗਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਕੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਮੋਡੂਲੇਟਡ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ ਵੱਡਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਘੱਟ ਆ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਛੋਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਵਧਿਆ, ਅਪਰ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਤੇ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਐਂਗਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਕੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਫੇਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਫੇਸ ਐਂਗਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ FM ਮਿਲਣੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਤੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ FM ਮਿਲੀ। FM ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੈਰੀਅਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ C ਪਾਵਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬੇਟੇ? ਇਹ ਸੀਗਾ FM ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਸਿਰਫ 9 ਹੀ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਅੱਜ ਘੱਟ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸਰ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਿਰਫ 9 ਹੀ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਜੇ ਵੀ 3 ਮਿੰਟ ਤੇ 18 ਸੈਕਿੰਡ ਪਏ, 17। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਇਹ 5ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ FM ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AM ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ AM ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੁਣ FM ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ। ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਡੀ ਮੋਡੂਲੇਟਰਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿਰਫ 4-5 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਹਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਲੈਣੇ ਆ? ਸਰ ਕੱਲ ਅੱਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਹਾਂ, ਜੇ ਨਾ ਹੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 0 ਲਾਉਂਗਾ। ਓਕੇ ਸਰ। 2 ਮਿੰਟ 30-32 ਸੈਕਿੰਡ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, 2.5 ਮਿੰਟ ਤਕਰੀਬਨ ਪਏ ਆ। ਦੱਸੋ ਕੁਛ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ 5 ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੋਈ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਸਰਕਟ ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਬੋਲੋ। शाबाश बच्चों। हाँ भाई स्टूडेंट्स बोलो, कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं, किसी भी तरह की कोई डाउट? चलो फिर मैं जो नहीं डाउट था हम 2 मिनट तो घट रह गया तो मैं फिर वो ले लो फिर प्रिंट अपने सारे वीडियो अपनी ऑन करो, सारे अपनी वीडियो ऑन करो, स्क्रीनशॉट लो, सारे अपने वीडियो ऑन करो। हाँ, सारे अपने वीडियो ऑन करो, स्क्रीनशॉट ले लो। आई एम गोइंग टू स्टॉप नाउ, ठीक है? सारे अपने वीडियो ऑन करो। सारे सरवण सिंह जुड़िया, अज मुंडा करतारपुर वाला नहीं जुड़िया, मैं देखा। चलो आ बच्चे वरिंदर ते यस अजय कुमार वीडियो ऑन करो, ठीक है नहीं? लो भी स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? यस सर, यस सर ले लिया। ठीक है, और अज की अटेंडेंस जी है सहजवीर ते जसप्रीत, ये मैंने भेज देंगे, ठीक है? ओके सर। ओके बच्चों, गुड लक, बेस्ट विशेस हैं। कल सबमिशन सबमिट करनी मैनू सारे ने सर जी।
ਸਰ ਕੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੇਣੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ। ਕੱਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ? ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੇਣੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ। ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਐਂਡ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। हार्ड कॉपी मतलब